Good morning, everyone. Today we have to start question number 9, page number 119. This is an unsolved question of not for profit concern. See here, given below is the receipt and payment of Vithai Mahila Mandal, Pandharpur for the year ending 31st March 2018. Prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Means we have to prepare income and expenditure account and balance sheet. See, this is receipt and payment account for the year ending 31st March 2018. This is debit side is the receipt side and credit side is the payment side. So first we have to mark the adjustment here. See, first adjustment, capital fund on 1st April 2017 was rupees 90,000. This is only one effect because it is recorded in liability side, capital fund. Okay, then second adjustment, outstanding subscription rupees 4,000. So this is current year subscription. So here we have to mark here adjustment number, receipt side, subscription adjustment number 2. Okay, after that third adjustment, entrance fees are to be capitalized. मतलब third adjustment entrance fees पूरा capital fund में record हो गया है. Adjustment number 3 here. Then adjustment number 4, rent paid include rupees. See here, rent paid include rupees 800 paid for April 2018. मतलब ये एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को एंड हो रहा है, लेकिन रेंट कब तक का भरा है? रेंट पेड इंक्लूड रुपीज़ 800 पेड फॉर अप्रैल 2018. इस 1 मंथ का पहले से भरा है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्रीपेड. सो रेंट को मार्क करेंगे हियर, पेमेंट साइड, एडजस्टमेंट नंबर 4. आफ्टर दैट एडजस्टमेंट नंबर 5, they have following assets and liabilities on 1st April 2017. So this is opening balances of assets, furniture, building and liability, outstanding expenses rupees 12,000. So this is only one effect because opening balances are given. Okay, now we have to start here from the receipt side. Here we have to open income and expenditure account and balance sheet. So in the books of Vithai Mahila Mandal, Pandharpur, income and expenditure account for the year ended 31st March 2018, debit side, expenditure side, credit side, income side, and here balance sheet as on 31st March 2018. Okay, liability side and asset side. Now see here, पहले हम लोग रिसिप्ट साइड करेंगे. ओके, रिसिप्ट साइड, हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज ओपनिंग balances. दिस इज नॉट recorded in balance sheet. In balance sheet we have to write closing balances. Okay, then second one, two entrance fees. एंट्रेंस फीस कितना दिया है? 3,500. दिस इज रिसिप्ट साइड, दैट इज इनकम. सो इनकम में रिकॉर्ड होगा बाय एंट्रेंस फीस. ओके, सी हियर, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में रिकॉर्ड किया 2 का बाय होता है. बाय एंट्रेंस फीस 3,500. व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? दैट एडजस्टमेंट नंबर 3 यहाँ पे हम लोगों ने मार्क किया है. एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या है? एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज. मतलब फुल एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में रिकॉर्ड है. सो एक इफेक्ट यहाँ पे हो गया, इनकम साइड बाय एंट्रेंस फीस लेस एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज. मतलब पूरा एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में गया है, इसीलिए लेस 3,500 हो गया. और आउटर कॉलम में नील इफेक्ट. और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आ गया? कैपिटल फंड में बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस पूरा रिकॉर्ड हुआ 3,500. सो ऐड हियर 3,500. सो एडजस्टमेंट नंबर 3 इज कंप्लीटेड. यहाँ पे मार्क करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 कंप्लीटेड. देन टू सब्सक्रिप्शन.
19,000. So here one subscription is given. Okay, so रिसिप्ट है तो इनकम में रिकॉर्ड होगा टू बाय सब्सक्रिप्शन. देखो यहाँ पे लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन 19,000. और यहाँ पे हम लोग ने मार्क किया है एडजस्टमेंट नंबर 2. इमीडिएटली एडजस्टमेंट देखेंगे. एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹4,000. यहाँ इसके दो इफेक्ट हो जाएंगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹4,000. ओके, सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है तो इनकम साइड में क्या होगा, ऐड होगा. ओके, मेंबरशिप की फीस मिलने वाली है, दैट इज सब्सक्रिप्शन. सो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000. 19,000 में 4,000 ऐड हो गए. सो आ गया अमाउंट 23,000. और नेक्स्ट इफेक्ट, दिस इज इनकम, सो रिकॉर्डेड एसेट साइड. ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹4,000. देन टू miscellaneous receipt. Miscellaneous receipt, that is also recorded here. Income side by miscellaneous receipt 8,850. Okay, after that payment side expenditure में record होगा, buy का 2 हो जाएगा. Okay, payment side, this is expenditure side, income and expenditure. Buy स्टेशनरी अमाउंट कितना दिया है, 6,000. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो 10 ऐड करना है. ओके, 600 दिया था तो यहाँ पे 6,000 हो गया है. बाय स्टेशनरी 6,000. ओके, सो बाय का यहाँ पे 2 हो गया. 2 स्टेशनरी 6,000 रुपीज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. आफ्टर दैट बाय रिपेयर्स टू फर्नीचर 950. रिपेयर्स टू फर्नीचर कितना हो गया, 950. सो दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड टू रिपेयर्स टू फर्नीचर 950 एक्सपेंडिचर साइड में. आफ्टर दैट बाय रेंट कितना दिया है, 8,300. ओके, सो 8,000 से दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक. सो 600 पहले यहाँ पे स्टेशनरी में रिकॉर्ड था वो 0 किया. फिर रिपेयर्स टू फर्नीचर 950 है. फिर रेंट का 8,300 है और सैलरीज़ का 15,000 है. एक 0 ऐड किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. सो बाय रेंट भी रिकॉर्ड होगा एक्सपेंडिचर साइड में. टू रेंट 8,300 क्योंकि एडजस्टमेंट हम लोग ने मार्क किया है, एडजस्टमेंट नंबर 4. ओके, सो सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया. एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या है, रेंट पेड इंक्लूड ₹800 पेड फॉर अप्रैल 2018. मतलब 800 रुपीज़ एक महीना ज़्यादा पेड किया है, एक महीने का. दैट इज़ ऑलरेडी पेड. उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड, क्योंकि ये अपना ईयर कब का है, 31 मार्च तक है. ओके, और रेंट अप्रैल का भी भरा है, अप्रैल 2018. सो 800 इज़ प्रीपेड. ओके, सो उसको क्या बोलेंगे, रेंट से ये लेस होगा, लेस प्रीपेड रेंट ₹800, 7,500. सो 12 मंथ्स का 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2018 का 7,500 आ गया क्योंकि ये अप्रैल का भरा है. ओके, अप्रैल 2018 का भरा है क्योंकि यहाँ पे दिया है अप्रैल 2018. दैट इज़ ऑलरेडी पेड. प्रीपेड लेस होता है, लेस प्रीपेड 7,500. देखो एक्सपेंडिचर लेस हो गया तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में, बैलेंस शीट एसेट साइड. हियर प्रीपेड रेंट ₹800, सेकेंड इफेक्ट. देन सैलरीज, दूसरा क्या है, पेमेंट साइड में सैलरीज 15,000. दैट सैलरी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज 15,000. नेक्स्ट है मिसेलेनियस एक्सपेंसेस. बाय मिसेलेनियस एक्सपेंसेस मतलब जनरल एक्सपेंसेस. ओके, यहाँ पे रिसिप्ट है और यहाँ पे expenses है. So 2 miscellaneous expenses recorded here. 2 miscellaneous expenses 450 expenditure side. Next, by balance carried down, cash in hand and cash at bank. Cash in hand 1650, cash at bank 14,000. Okay, 1650 and 14,000, that is recorded asset side. Cash in hand 1650, cash at bank 14,000. Okay, closing balances are recorded. Okay, so here all over
देन एडजस्टमेंट देखना है कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है. सो हियर रेंट का भी होगा एडजस्टमेंट नंबर 4. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे. कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017 वॉज ₹90,000. इसका एक ही इफेक्ट आ जाएगा क्योंकि कैपिटल फंड है 1 अप्रैल 2017. सो हियर लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड किया हम लोगों ने कैपिटल फंड 90,000. उसमें से पहले ही एंट्रेंस फीस हम लोगों ने लिखा है प्लस 3,500. सो इनर कॉलम में ही टोटल लिखेंगे 93,500. सो ये हो गया. उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5. दे हैव फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑन 1 अप्रैल 2017. इसका भी एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं 1 अप्रैल 2007. 1 अप्रैल ऐसे डेट रहेगा 1 अप्रैल, तो ये एक ही इफेक्ट आएगा. ओके, बिकॉज दिस इज ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ 1 अप्रैल 2017. सो हियर फर्नीचर 9,000 recorded here. asset side furniture 9,000. उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000. सो बिल्डिंग भी एसेट है, बिल्डिंग रिकॉर्ड किया एसेट में. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिस इज़ व्हाट, लाइबिलिटी. सो इसका एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं. ओके, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,000 लाइबिलिटी साइड. सो यहाँ पे ऑल एडजस्टमेंट्स आर ओवर. अभी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे. वी हैव टू डू द टोटल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. देखो टोटल करेंगे. क्रेडिट टोटल 23,000 प्लस 850 प्लस 6050. तो क्रेडिट टोटल आ रहा है 29,900. अभी डेबिट टोटल करेंगे. और क्रेडिट टोटल आ रहा है 23,850. सी इन दिस क्वेश्चन डेबिट साइड इज मोर. सो 6,000 प्लस 950 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 450. सो डेबिट टोटल 29,900. ओके, और यहाँ तक क्रेडिट टोटल हम लोग करेंगे अप टू 850 तक. 23,000 प्लस 850, 23,850. दिस इज क्रेडिट टोटल. क्रेडिट टोटल लेस है 23,850, कम है ये. सो माइनस करेंगे डेबिट से तो आता है बैलेंस 6050. दिस इज कॉल्ड एज अ डेफिसिट. डेफिसिट दैट इज व्हाट, लॉस. क्यों लॉस है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है. डेबिट साइड कितना है 29,900 और क्रेडिट साइड यहाँ तक कितना है 23,850. सो दिस इज लॉस. सो बाय डेफिसिट, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है. बाय डेफिसिट 6050 एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. इसका मतलब है एक्सपेंडिचर का ये टोटल आ रहा है 29,900 और इनकम का टोटल आ रहा है 23,850. सो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है. सी दिस इज एक्सपेंडिचर टोटल एंड दिस इज इनकम टोटल. सो हियर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है, इसीलिए एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड एज डेफिसिट. डेफिसिट 6050 दोनों तरफ टोटल किया 29,900 एंड 29,900. अभी ये डेफिसिट दिस इज लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा कैपिटल फंड से. ओके, लाइबिलिटी साइड. सो यहाँ पे लेस किया, लेस डेफिसिट 6050. दिस 6050 दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. माइनस करके अमाउंट आ रही है 87,450 और ये लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 99,450 लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल आ रहा है here 99,450. So this is simple question. Okay, you solve this question in your notebook. Thank you.